The mysterious stories. यस जो यस आयुर्वेद थोड़ा यस यस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जब बोर होते हो तो नॉवेल्स पढ़ो, मतलब बहुत अच्छा है। एक तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, योर इंग्लिश यू विल बिकम वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग। और दूसरा बात है, आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा, राइट, भरपूर एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा। और उसमें क्या होता है कि ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत होता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब दिमाग ज़्यादा प्रोसेस करता है, अच्छा लगता है। तो कोई मूवी को देखते तो क्या वीडियो ऑडियो दोनों आ जाता है, बस काम खत्म, पर चटपट हो जाता है, मतलब वो फास्ट फूड जैसा होता है, उसमें थोड़ी ना मज़ा आता है। अब मतलब धीरे मतलब इमेजिन करके धीरे धीरे करके उसको विजुअलाइज करके पढ़ने में जो मज़ा आता है, वो मूवी देखने में इतना मज़ा नहीं आता है। आप कभी ट्राई करो, राइट आउट, ओके। ओके, तो बेटे ओके लेट्स स्टार्ट। तो बेटे कल हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करे थे, राइट। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके प्रॉपर्टी डिस्कस करे थे, राइट। ओके, और उस yes ओके, और उसमें एक प्रॉपर्टी बाकी रह गया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटे you have you are all you always you already know the distributive law that is applicable in case of real numbers, right? You know it that multiplication is distributive over addition. That is to say, if a b c are three real numbers, then a into b plus c is equal to a into b plus a into c, right? Multiplication is distributive over addition, over addition. You know it in case of real numbers. Exact same thing is also there in case of complex numbers. That is to say, if if z1, z2, z3 are three complex numbers, then z1 into z2 plus z3 is equal to z1 into z2 plus z1 into z3, right? Exact in the similar fashion that you do in real numbers. So distributive law of, in fact most of the laws of complex numbers are very much are very much congruous with the laws of real numbers, right? Okay, so ये होता है उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में? No, sir. नो no sir कंफ्यूजन। No, sir. ओके, एवरीबॉडी कंफर्टेबल? शुड वी मूव ऑन? yes sir ओके Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो बेटे in the last class we were also talking about multiplicative inverse or reciprocal of a complex number, right? So let's do a couple of problems on that. Reciprocal or multiplicative 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 inverse of a complex number, right? Number inverse, okay. So ओके, सो हम इसमें क्या देखे थे कि इफ जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन 1 by z is called the reciprocal or multiplicative inverse. Let me write it in short, mi, okay, is called the reciprocal or multiplicative inverse of z, such that when you multiply z with 1 by z, z cancel out and you get what? The complex number 1. You get what? The complex number 1. But everybody, is there anybody who has any doubts that 1 is, how is 1 a complex number? Every real number is also a complex number, right? 1 is also a complex number, remember, okay? Every real number is also a complex number. तो बेटा हम क्या लिखे यहाँ पर कि अगर z एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों लिखे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर? बिकॉज यू सी दैट जीरो डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, zero does not have a reciprocal, or we can say that reciprocal of zero doesn't exist. Okay, think about it. What can you multiply with zero so that you will get 1? Nothing,
right? Because if you multiply any number with 0, you will get what? 0, right? There is no such number which you can multiply with 0 and get 1, right? So 0 does not have a reciprocal, Yes, sir. right? Because what is reciprocal? That if I have a number, a, what do I multiply a with so that I will get 1? What do I multiply a with so I will get 1? That is what? 1 by a, right? And we say Yes, sir. that a and 1 by a are reciprocal of each other or multiplicative inverse of each other. But think about it, what is the reciprocal of 0? Nothing. 0 doesn't have any reciprocal. Okay, if any of you think that 1 by 0 is the reciprocal of 0, then think again. 1 by 0 is not a number, it is not defined, it is undefined, remember. So that is why I said from the very beginning that if z is a non-zero complex number, अगर z non-zero complex number है तभी 1 by z उसका reciprocal. देन बात आता है कि हाउ टू फाइंड 1 by z. हाउ टू फाइंड 1 by z. z अगर हमें if we are given z, then how do we find 1 by z? Well, there are two ways. Number one, use the direct formula. What is the direct formula? Method 1, we already learned about this in yesterday's class. What is method 1? That you know the formula for 1 by z is conjugate of z by z modulo squared, right? This is the formula of 1 by z we discussed yesterday. Okay. Yes, sir. अगर आपको किसी को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सो लेट मी जस्ट डिराइव इट 1 सेकेंड, इट विल जस्ट टेक मी 1 मिनट. ओके, तो बेटे 1 बाई जेड अगर हमें दिया गया है तो मैं ऊपर और नीचे जेड का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूंगा. क्या मल्टीप्लाई करूंगा? जेड का कॉन्जुगेट. ऊपर भी जेड का कॉन्जुगेट, नीचे भी जेड का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूंगा. एंड वी नो दैट जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Sir, Z मॉड ऑफ जेड स्क्वायर्ड. ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखे थे, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है, आप चेक करो अपने नोटबुक पे. मॉड का जेड का मॉड का स्क्वायर, तो बस कॉन्जुगेट ऑफ जेड बाई जेड का मॉड का स्क्वायर. यहीं से फॉर्मूला आया है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला और वी कैन गो अलॉन्ग द प्रॉपर प्रोसेस. ओके, सो फर्स्ट लेट्स डू इट इन मेथड 1. सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन. सपोज there is a complex number z which is 4 minus 3i, and I want you to find the reciprocal or multiplicative inverse of z using method 1, that is using the formula directly. Well, 1 by z is equal to what? Conjugate of z by mod of z square. So let's find conjugate of z and modulus of z square individually, okay, outside. Now we know the value of z. Now what is z conjugate? Can anybody tell me what z conjugate is? 4? Sir, 4 plus 3. Yes. Plus 3i. माइनस प्लस होगा. Yes, very good. Remember, while you are trying to find the conjugate of a complex number, remember, do not disturb the real part. Real part stays as it is. Only thing you have to do is reverse the sign of the imaginary part. In this complex number here, the real part is 4 and the imaginary part is minus 3. Well, reverse the sign of the imaginary part, make it plus 3. So the conjugate will be equal to what? 4 plus 3i, right? This is the conjugate. Then Yes, sir. what is mod of z? 25. 25. Mod of z formula, what is the formula of mod of z? 4 So square. a square plus b square. Yes, The root over. root over. Real part of z का square plus imaginary part of z का square, then root over. And as you can see here, the real part is 4, so 4 square plus the imaginary part is minus 3, so minus 3 square, and is equal to 16 plus 9 root over. 16 plus 9 is 25. 25 root over is 5. Let me remind you once again, guys, please pay attention. Okay, please pay attention.
that modulus of a complex number is a non-negative number. Modulus of a complex number can never be negative. It is either 0 or positive. It is not a negative number. Another thing, I have told you from the very beginning that this symbol is used to find the non-negative square root of a number. You see that 25 has two square roots. What are they? One is 5, the other one is minus 5. 25 has two square roots, one is 5 and the other one is minus 5. But which one of them is non-negative? 5, right? So the answer is 5. This symbol is used only. If I put a minus in front of it, then you get the answer minus 5. Otherwise only this is 5. Okay, remember. So modulus of a complex number is non-negative. That's one thing. And let me tell you one more thing. आप यहीं पर कुछ गलती कर देते हो तो मैं आपको रेक्टिफाई कर देता हूँ. बेटा देखो, कोई आप में से ऐसा कर देते हो, हैबिट है स्कूल से, गलती से कोई सुधारा नहीं है कि आप ऐसे लिख देते हो इसको. बेटा इसका मतलब क्या समझते हो ना कि -9, इसका मतलब होता है -9 माइनस इंटू 3 का स्क्वायर. नो, अगर आपको -3 का स्क्वायर निकालना है तो यू हैव टू पुट -3 विद इन ब्रैकेट्स, देन फिर उसका स्क्वायर लिखोगे. तभी हम समझेंगे कि पूरा का पूरा -3 का स्क्वायर आप निकालना चाहते हो 9. लेकिन अगर आप -3 स्क्वायर ऐसे खाली लिखते हो तो क्या समझा जाएगा बेटे? -9 समझा जाएगा. यू गेट माई पॉइंट? हेलो. ओके. ओके. देन तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू आया टू 5. तो व्हाट इज मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर? 25, राइट? बस. Yes sir. बस. तो हमारा आंसर आना चाहिए मॉड ऑफ जेड. ओके, देन 1 सेकेंड. यस, देन 1/z is equal to what? Conjugate of z by mod of z square. Well, what is conjugate of z? 4 plus 3i. 4 plus 3i. And what is modulus of z square? 25. But remember guys, here our complex number, since obviously this is the correct answer, but our complex number is not in a standard form. It is not in a standard form, because standard form is, what is the standard form? X plus iy. Plus iy. Yes, this is the standard. Yes, so you have to write it 4 by 25. Yes, plus 3/25. Finally you got your standard form. So this is 1/z. Yes, sir. You already got it? Okay. So take the screenshot and let me erase it. Okay, one second. बेटा जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास बुलाऊंगा क्लास के लिए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ज्वाइन माई क्लास. एनी टाइम आई आस्क यू फॉर एक्स्ट्रा क्लास, प्लीज़ ज्वाइन माई क्लास. क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में इतना तरक्की करो कि मैं खुद प्राउड फील करूँगा. मेरे पास से जो बच्चे गए हैं वो ज़िंदगी में तरक्की कर गए हैं, बहुत कुछ अचीव कर गए हैं, और ये टीचर के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है. हाँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ है बेटे. स्वार्थ क्या है मेरा? कि मुझे थोड़ा प्राउड फील करना है. यू गेट माई पॉइंट? हेलो. यस सर. Yes sir. इवनिंग में सर क्लास हुआ था 7 बजे. ना कल नहीं हुआ था. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. नहीं कल नहीं हुआ था बेटे. कल हमारा सुंदरे जी हमें मदद कर रहे थे कि सर थोड़ा मदद कर देते हैं सर का वो जो लेक्चर नोट है ना, लेक्चर नोट, उसमें सुंदरे जी हमारा थोड़ा मदद कर दी. ओके. अरे सुंदरे जी जब तक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं. हाँ सर, कौन सा प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग. क्या सुंदर जी, क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं. नहीं यही तक सर वो एक्सपर्ट है. नहीं एक्सप्लोर कोई नहीं करेगा. सुंदर जी पैसा भी चार्ज करते हैं. कौन सा पैसा सर? मनी चार्ज मेरे करते से हैं. नहीं, मैंने तो किसी से चार्ज नहीं किया सर. आपसे सर कितना चार्ज किया सर? थोड़ा बताइए. सर्विस के लिए सुंदर जी तो चार्ज थोड़ा करते लालची हैं. थोड़ा लालची इंसान है. देवबंद से पूरा गांधी है, महात्मा गांधी. कोई मतलब कि कुछ मतलब जो कुछ मांगता है, अगर कोई घर मांग लेगा तो वो दे दे. अच्छा, तो सुंदर जी थोड़ा, अच्छा ठीक है. सुंदर जी के बाद लास्ट को देखते हैं. ओके चलो. तो ओके, तो नाउ विल डू द सेम प्रॉब्लम
बट इन ए डिफरेंट वे यूजिंग प्रोसेस। ओके, तो बेटे क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या था बेटे? 4 - 3i था, राइट? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो बेटे ध्यान देके पूरा पूरा पे अटेंशन, ये मेथड 2 है, पे अटेंशन। और कभी कभी आपको मेथड 2 में करने का दिल करेगा जब आपको फार्मूला थोड़ा मतलब दिमाग अगर प्रेशर आ जाएगा, अगर फार्मूला थोड़ा गलती से भूल भी गए हो तो मेथड 2 में ही आपका काम चल जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर फार्मूला थोड़ा सा दिमाग से तनिक निकल गया तो मेथड 2 में हो जाएगा। कैसे देखो, यू वांट टू फाइंड 1/z। वेल व्हाट इज 1/z? 1/z इज 1/4 - 3i, राइट? ओके, अब बेटे देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 1/4 - 3i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इट इज ग्रांटेड, यू सी दैट इट इज ऑब्वियसली द रेसिप्रोकल ऑफ 4 - 3i। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, तो 4 - 3i का रेसिप्रोकल है तो और क्या करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप बोलोगे सर देखिए 4 - 3i को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1/4 - 3i के साथ, मुझे आंसर तो 1 मिलता है, ठीक है, तो ये हो गया उसका रेसिप्रोकल। तो सर क्यों और आगे क्यों जाना है, क्यों हमें परेशान करें? देखो प्रॉब्लम ये है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। यू गेट माय पॉइंट? स्टैंडर्ड Yes, फॉर्म sir. कैसा होता है? x प्लस i। करना होता है। यस, x प्लस i y। लेकिन ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मेरा टारगेट होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, राइट? टारगेट होगा, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो मेरा टारगेट स्टैंडर्ड। और दूसरा बात ये है कि मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं कैसे? देखो बेटे जरा इसका डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? यस सर। ओके, यस सर। देखो बेटे यस सर। हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि कैसे भी करके हमें डिनोमिनेटर को एक प्योरली रियल कर दे, प्योरली रियल नंबर कर दे। मेरा बात समझ रहे हो ना? डिनोमिनेटर को प्योरली रियल नंबर कर दे। जैसे आप स्कूल में मैं याद दिलाता हूँ आपको, रैशनलाइजेशन प्रोसेस में कैसे करते थे। सपोज 1/√3 + 2 लिखा था, तो आप क्या करते थे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे √3 - 2 मल्टीप्लाई करते थे, राइट? मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। ऐसा क्यों करते थे? ताकि डिनोमिनेटर को आप रैशनल बना सकते, राइट? डिनोमिनेटर यही रैशनल है, ई रैशनल से कैसे रैशनल बना दे, इसीलिए करते थे ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली द सेम आइडिया इज ऑल्सो अप्लाइड हियर, कि डिनोमिनेटर को हम प्योरली रियल कैसे बनाएं। और डिनोमिनेटर को प्योरली रियल बनाने के लिए ऊपर और नीचे हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर? 4 + 3। बस एक ही रास्ता यही है बेटे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो बेटे ऊपर हो गया 4 + 3i। बेटे नीचे देखो x - y × x + y क्या होता है? x² - y², मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, राइट? यस सर। तो 4 + 3i। हाँ इधर देखो, इधर मैं आपको बात बताऊँ बेटे, कोई गलती से लिख देते हो, इसको समझ के आ जाते हो कि मैं लिख दिया हूँ 3i का स्क्वायर। बेटे यहाँ पर मार्क कट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है पता है? 3 × i का स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रखना है, 3i को ब्रैकेट में रख के फिर स्क्वायर देना है। यू गॉट माई पॉइंट? ताकि 3 × i का होल स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, i का स्क्वायर इज व्हाट? -1, राइट? वी नो i का स्क्वायर इज -1। यस सर। सो 16, ये -9 × -1 इज +9, 16 + 9 25। तो बेटे देखो आपका जो डिनोमिनेटर है अभी रियल बन गया, चेक करो, यस सर। रियल बन गया। बस यही हमारा टारगेट है। तो बस अब इसको क्या कर देंगे? 4/25 + 3/25 × i हो गया हमारा आंसर। यस सर। यू गेट माय पॉइंट? यस सर। बस यस यस सर। सर। बस यही आपको ऐसे ही करके आपको स्टैंडर्ड मेथड में कर देना है, ठीक है? तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड विल डू अ कपल मोर क्वेश्चंस। डन? यस सर, डन। ओके सर। ओके यस सर। ओके, so let's do one more question is कि express
z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i डिवाइड बाई 3 माइनस 4i इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा देखो, मैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सारे सेक्शन में एक साथ पढ़ाया जाएगा। और आज मतलब बहुत कम बच्चे आए हैं शायद, या फिर सब बच्चे आ गए मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी सारे सेक्शन में एक साथ मंडे से हम शुरू करेंगे डिवीजन। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है जो कि हम इसको डिस्कस ना कर सके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 1 प्लस 2i बाई 1 माइनस बाई 3 माइनस 4i कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको कैसे पता चला? मैं आपको बेटे दो बात बताना चाहता हूँ, दो बात। पहला बात याद रखो बेटे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड करते हो, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो Z2 है वो Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, Z2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर कोई भी वो रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी नंबर को जीरो में डिवाइड करने से यू गेट अनडिफाइंड आंसर। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें रिटर्न में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ध्यान दो, तो इधर देखो, न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो डिवाइड करने से हमें और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इससे मुझे पता चला कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, द अदर थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, वो अदर थिंग क्या था कि बेटा को दुनिया में कोई भी नंबर अगर डिफाइंड है, कोई भी नंबर अगर एग्जिस्ट करता है, देन डेफिनेटली इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड। तो कोई भी नंबर को अगर जीरो के अलावा और किससे भी डिवाइड करो, या फिर कोई भी नंबर अगर डिफाइंड है, तो डेफिनेटली दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर और कुछ नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जो नंबर रियल नहीं है वो सब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो रिमेंबर दिस। सो दिस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बेटे सॉल्यूशन में आते हैं। Solved. ओके, कर दियो? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो बेटे देखो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। टारगेट, पहला टारगेट क्या रहेगा? जरा बेटे ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर, ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर। वेल, ऑन द डिनोमिनेटर व्हाट डू यू हैव? यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे मैं डिनोमिनेटर को प्योरली रियल बना दूँ। क्या बना दूँ? प्योरली रियल बना दूँ। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। एंड डिनोमिनेटर को प्योरली रियल बनाने के लिए व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर both on the top and on the bottom. Well, the denominator is 3 minus 4i, so its conjugate is definitely 3 plus 4i. Then I will multiply 3 plus 4i both on the numerator and on the denominator. उससे मेरा काम क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर रियल हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? प्योरली रियल हो जाएगा, राइट? अब बेटा ऊपर सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। 1 into 3 plus 4i plus 2i into 3 plus 4i डिवाइडेड बाय, बट इधर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, राइट? ओके, तो बेटा उधर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, जो डिनोमिनेटर को। ओके, तो बेटे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर लेके 3 प्लस 4i प्लस 2i into 3 6i plus 2 into 4 8 into I square, right? I into I square. Yes, sir. Divided by 3 square is 9, but 4 square is 16 और I square is -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 Plus 16. ओके 25. 25। और बेटा आपको पता है सबको I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये आ गया -1, तो 8 into -1 is -8, राइट? और ये 3 है, तो 3 minus 8 प्लस 4i प्लस 6i is 10i डिवाइड बाई 25। 3 minus 8 is -5 प्लस 10i डिवाइड बाई 25। वेल, Sir, -1 by 5 plus 2i by 5.
यस, सो अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। -5/25 प्लस 10/25 इंटू आई, और काट दो, 5 से काटोगे तो 5, 5 से काटोगे तो 2, ये 5, तो कितना आएगा -1/5 प्लस, 2y/5. हेलो गॉट इट, रेडी? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, यस, डन। Yes, sir. ओके यस सर। ओके, अच्छा, सपोज क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 1/i³ in standard form, वेल बेटा फिर से वही बात, देखो बेटा 1 एक रियल नंबर है और हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, मतलब 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, i³ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि i³ = -i, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सोचना मत कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। जब तक डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है तब तक वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो अनडिफाइंड, राइट? ओके, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अरे बहुत ईजी है, सब कर दोगे, मुझे पता है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. मिलेगा sir. बेटा व्हाट इज IQ? टेल मी व्हाट इज Sir, IQ? -i. माइनस है। मतलब 1/-, माइनस। बेटे मुझे हाँ, बात sir, बताओ, यस बेटे मुझे बात बताओ, 1/-i को मैं लिख सकता हूँ क्या? -1/i एक ही बात है ना? माइनस को Yes, यस सर। माइनस को जब आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस को -a/b लिखो या फिर a/-b लिखो, सेम बात है ना, वही बात। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1/i इज ऑल्सो इक्वल टू -i, राइट? पढ़े थे हम, लिखे थे, राइट? तो ये हो गया माइनस Yes. ऑफ -i, माइनस i क्या हो जाएगा? +i। अच्छा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं दिख रहा है, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखना होगा कि इसको लिख सकते हैं हम 0 + i, राइट? i = 0 + i। तो ये बन गया Yes. बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, x + iy। क्या है इसका रियल पार्ट? 0। 0 क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट? 1। 1 यू गेट इट? यस सर। यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. ओके ओके, अच्छा बेटे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, यस क्वेश्चन है, मैं थोड़ा याद करता हूँ क्या था क्वेश्चन था। यस, क्वेश्चन ये था i⁴n समेशन n = 1 to 13, इसका वैल्यू पूछा है। और बेटे ये समेशन वर्ड देख के आप डर जाते हो, सॉरी समेशन सिंबल देख के आप डर जाते हो। इसमें डरने का कोई है ही नहीं, आप ये समेशन ऑलरेडी 9th क्लास में करके आए हो, बस इसको इग्नोर कर दिए थे। हैं, बताता हूँ बेटे। सपोज मैं कहीं पर लिखता हूँ समेशन i = 1 to 100 x⁴n, इसका क्या मतलब होता है पता है? कि इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो बस, सॉरी i, हाँ x⁴i, सॉरी n लिख दिया कि i, इसको अगर आप एक्सपांड करोगे बस i के जगह 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर डालते जाओ। पहले i की जगह 1 डालो, x⁴1। बेटा समेशन मतलब होता है सम, प्लस, हैं, प्लस करते जाओ, प्लस i के जगह 2 डालो, x² प्लस i का, बेटा समेशन मतलब प्लस, हैं, सम i की जगह 3 डालो, x³। ऐसे करके कब तक जाओगे बेटे? x⁴100। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सबको समझ में आएगा? किसी को डाउट है? ओके, जो ओके ओके नो नो। ओके, वेरी गुड। तो बस इसको हमें कैसे डील करना है, सोल्यूशन। तो बड़े देखो n = 1 to 13 i⁴n, मतलब i⁴1 + i⁴2 + i⁴3 प्लस डॉट 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 प्लस i⁴12 प्लस i⁴13, राइट? गेट माय पॉइंट? अच्छा, और बेटे मैंने आपको बोला था
कि आई का पावर, याद करो बेटे, ये फॉर्मूला याद करो, मैंने बोला था कि आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि आई का पावर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनको ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। है बस बस जीरो। बस आपको देखना है बेटे, देखो ध्यान सुनो, इधर देखो बेटे, मैं जो बोल रहा हूँ, इधर देखो आई का पावर 1 से लेकर 12 तक, पहले इसको कंसीडर करो, राइट। आई का पावर 1 से लेकर 12 तक ले जाओ पहले, हैं आई का पावर 1 से लेकर 12 तक। बेटा क्या है, इसको आप 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव सब है, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। मेरे बात समझ रहे हो ना? 4 कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो ना। 12 इज डिविजिबल बाय 4। हेलो, यस सर। हाँ, ऐसा सोचो सोचो Yes, sir. सोचो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आई का पावर 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यूब प्लस आई टू द 4, ये एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट ग्रुप आई टू द 5 आई टू द 6 प्लस आई टू द 7 प्लस आई टू द 8, ये ग्रुप बन गया, राइट। 4 ग्रुप बनाना है। नेक्स्ट ग्रुप प्लस आई टू द 9 प्लस आई टू द 10 प्लस आई टू द 11 प्लस आई टू द 12 बन गया। 4 कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप बनाना है। और मैं 12 तक क्यों लिया? बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाय 4। 4 ग्रुप मुझे बनाना है, राइट। और मुझे पता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर आई का पावर है तो ऐड करने से सब 0 हो जाएंगे। ये 0, ये 0, ये भी 0, ये सारे 0 हो गए। तो आई टू द पावर 12 तक वैल्यू इज 0, सम इज 0। बस एक ही बचा आई टू द पावर 13, राइट। एंड आई टू द पावर 13 को 4 से डिवाइड करो, क्या होता है? 3 into 4 plus 1, राइट। हेलो, 12 Yes, plus sir. 1। हाँ, और फॉर्मूला Yes, पता है sir. ना, आई टू द पावर 4m प्लस आर इज इक्वल टू आई टू द पावर आर। हाँ, तो इधर आर क्या है बेटे? 1 है। तो आई टू दी पावर आर मतलब आई टू दी पावर 1, मतलब आंसर इज आई। लेकिन ये थोड़ी ना आपको करना है, ये थोड़ी ना आपको लिखना है, इसको लिखना नहीं है, ये समझ जाना है आपको कि 4 ग्रुप में मुझे डिवाइड कर सकता है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल करते हैं और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सपोज हम करेंगे आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 1 तो वो नहीं देगा, आई देगा। आई मतलब क्या होता है? आई टू दी पावर 1, आई टू दी पावर 3 प्लस प्लस आई टू दी पावर 1002 सपोज करते हैं। बराबर समझ रहे हो? ओके, तो बेटे इधर देखो आई का पावर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 1002 है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो कोशिश करो 4 ग्रुप में डिवाइड करने की। लेकिन 1002 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन उसका जस्ट पहले एक नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, वो क्या है? 1000, राइट। राइट, हेलो, यस सर। ओके बेटे 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना? अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट को लेके जो नंबर बनता है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो हम बोलते हैं दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 00 है तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर 00 है, जैसे कि 1000 का लास्ट 2 डिजिट 00 है, 00 को लेके जो नंबर बनता है वो क्या होता है? 0। एंड वी नो दैट 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। इसीलिए डायरेक्टली हम बोलेंगे कि कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट को लेके जो नंबर बनता है, अगर वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 1000 इज डिविजिबल बाय 4। तो मैं आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 3 प्लस आई टू द पावर 1000 प्लस आई टू द पावर 1001 प्लस आई टू द पावर 1002। बेटे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ, चेक कर लो। 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं? हेलो, 1000 नंबर को वाई? बिकॉज 1000 इज डिविजिबल बाय 4। तो 1000 टर्म्स को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और सब का सब ग्रुप का सम 0 होगा, तो ये टोटल 0 हो गया बेटे, ये हो गया 0। तो बचा क्या? आई टू द पावर 1001 प्लस आई टू द पावर 1002। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। और आई एंड आई टू द पावर 1001 को 4 का मल्टीपल 1000 प्लस 1 प्लस इधर 1000 प्लस 2, राइट। ओके, देखो बेटे 4 का मल्टीपल प्लस आर। ओके, तो आर क्या है? 1, तो आई टू द पावर 1 प्लस इधर आर क्या है? 2, तो आई का स्क्वायर। यू गेट माय पॉइंट? एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? -1, सो -1 प्लस आई। यू गेट इट? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir.
ओके, दिस इज हाउ वी डू इट। हाँ, ओके। सो टाइम हो गया बेटे। अच्छा सेनापति जी, हो सेनापति जी, अरे सेनापति जी,